गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। रघुनाथ पतित कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज। एक काले कोता गेला गोरा नटराज। एक काले कोता गेला गोरा नटराज। पाषाणी कुटिबो माता आनाले पसिबो। पाषाणी कुटिबो माता
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Acharya Thakur, Acharya Thakur, Jaya Acharya Thakur. Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Prabhupada,
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मथुरा अयोध्यापुरी धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, तुलसी देवी बिंदे देवी की, भक्ति देवी की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, संवेद गौड़ भक्त वृंद की, श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, चतुर्मास यात्रा महामहोत्सव की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Narayanam Namaskrityam Narang Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Bhadresu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naisthiki। Om Ajnanantimirandasya Jnananjana Salakaya Chakchurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah। Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Savdaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Visakhanvitanscha। He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye। Vancha kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah। Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine। Hare Krishna।
आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के भागवतम कक्षा में। और आज का जो चर्चा का विषय है वो श्रील सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस, साथ ही व्यास देव जी के प्राकट्य दिवस जिसको व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वृंदावन में मुड़िया पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन में कई सारे फेस्टिवल हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी ब्रजवासी को बहुत ही अत्यंत प्रिय थे। हर एक ब्रजवासी सनातन गोस्वामी से रोज मिलते थे प्राय, और सनातन गोस्वामी हर एक से मिलके उसके दुख और सुख में भले ही शामिल ना हो लेकिन दुख में हमेशा साथ रहते थे। तो जब सनातन गोस्वामी का प्रकट हुआ, तिरुभाव हुआ, तो उस दुख को प्रकट करने के रूप में हर एक ब्रजवासी उस दिन मुंडन करवाए थे, अपना सर मुड़वा लिए थे। इसलिए उसको मुड़िया पूर्णिमा के रूप में भी बोलते हैं। ये आज भी, सिर्फ ना कि उस समय में हुआ था, आज भी ये एक तरह से फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल को मनाया जाता है ब्रज में। आज आप ब्रज में जाएंगे देखेंगे, अब यंग जनरेशन का तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन जो पुराने हैं वो आज भी अपने इस कल्चर को, इस संस्कृति को अपनाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो भजन हमने गाया उसका मीनिंग पढ़ेंगे। अहो जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे, ये मुझे गूंजते हुए लग रहा है, ये सबको आवाज क्लियर है? सबको गूंज रहा है ना? इको थोड़ा कम कर दीजिए। अहो जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवासाचार्य कहाँ चले गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन तथा पतितों का पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूँ या आग में प्रवेश कर जाऊँ? गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। तो ये जो भजन है ये वैष्णव के विरह में श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। अपने विरह को, अपने जो एक भावना है वैष्णव के प्रति, जो आसक्ति है, जो प्रेम है, उसको इस भजन के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं उनके लिए, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन आने से पहले जो अप्रकट हो गए थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में, जब उस अध्याय में भगवान के अवतार का वर्णन हो रहा है कि कौन से अवतार क्या हैं, कितने नंबर पे हैं, तो उसी में से एक अवतार व्यासदेव जी के बारे में बताया जा रहा है। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतर्हो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। पहले एक वेद था, उसको व्यासदेव जी ये समझे, भगवान ये समझे कि अब जो धीरे धीरे युग आ रहा है, युग के साथ में जो जीवात्मा है उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट या क्षीण होती जा रही है, तो ये तो वेद को समझ नहीं पाएंगे। एक ही वेद में पूरे सब कुछ भगवान के जो नाम गुण रूप लीला सृष्टि की रचना हर एक चीज एक ही वेद में वर्णन था। तो मनुष्यों की अवस्था को देखते हुए, उसकी चेतना को, उसकी जो बुद्धि की जो क्षमता है, समझने की क्षमता, उसको देखते हुए भगवान अवतार लेते हैं। किसके रूप में? व्यासदेव के रूप में, पराशर मुनि के पुत्र के रूप में।
रूपा जी तात्पर्य में समझाते हैं इसके अनुवाद को कि मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिए, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किसको? वेद को। वेदों के जो वाक्य हैं उसको बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, परिपक्व, जो आत्म साक्षात्कार, जो रिलायंस सोल है, वही उसकी भाषाओं को समझ पाएंगे। ये हम जैसे बद्ध जीवों की समझ से बड़े हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। अब ये द्वापर त्रेता की तो बात छोड़िए, कलयुग की स्थिति और मंद सुमंद मतयो एकदम बुद्ध में गायब। ये कलयुग के जीव का लक्षण होगा, उसके स्वभाव हो जाएगा। तो उसके बारे में क्या कहना? अब कलयुग पूरा ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। उसका उद्धार कैसे होगा? इन बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं और वेदों को विस्तार करते हैं। यहां तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग को बस खाना पीना सोना और अपने आप को रक्षा करना, भोग करना, इसी सब में लगा के रखता है, इसी में लगा रखता है। तो ब्राह्मण भी आज के डेट में ऐसा ही है, कहने के लिए ब्राह्मण हैं लेकिन अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और जिस कारण आचरण जो है वो चर्चा ना किया जाए, ऐसा है। शूद्र से भी बदतर। और स्त्रियों को भी इसमें यही बताया कि जो शास्त्रों में पारंगत है, जो भक्ति कर रही हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो शास्त्र को पढ़ती नहीं, जिसमें उसकी रुचि नहीं, वैसी स्त्रियों को भी बुद्धि जो है वो मंद है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्रील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं की विभाजित किया। तो श्रील व्यासदेव जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, और फिर क्या नाम है 18 पुराणों की रचना किए, 108 उपनिषद की रचना किए। 18 पुराणों में जैसे महाभारत, रामायण इत्यादि, भागवतम, ये सारे आते हैं महान ग्रंथ। इन सब की रचना किए ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें शास्त्रों को, और जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा कर सकें। और जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, गोपीर भक्त पद कमले और दास दासानुदास। तो जीवात्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान के सेवक की सेवा करना। और इस ज्ञान में, इस संबंध ज्ञान में स्थित रह के यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो वही जीवन की सार्थकता है। और यही बताने के लिए इतना विस्तार व्यासदेव जी किए थे, आज ही के दिन प्रकट होके। आज ही के दिन में गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का मतलब है कि व्यासदेव के प्रतिनिधि, जो व्यासदेव ने शास्त्रों में बात बताए हैं, उस बातों को एज इट इज, अपनी बात नहीं, जो शास्त्रों की बात है उसको एज इट इज हम तक पहुंचाएं, उसके अनुसार खुद भी जीवन जिएं और हम सबको भी प्रेरित करें, हम सबको भी एक मार्गदर्शन दें, ताकि उस ज्ञान को अपने जीवन में विज्ञान के रूप में प्रकट कर सके, उसको अपना करके। इसीलिए आज के दिन में गुरु की भी पूजा की जाती है, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में बोलते हैं। साथ ही हम इस्कॉन में देखते हैं कि जो गुरु का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्राकट्य दिवस मनाया जाता है,
उसको बोला जाता है व्यास पूजा। व्यास पूजा का मतलब यही है कि वो व्यास जी के प्रतिनिधि हैं। जैसे इस आसन को बोला जाता है व्यास आसन, मतलब व्यास देव जी जो बोले थे, इसलिए इस आसन की भी मर्यादा है। ये नहीं यहाँ आके अपने मन की बातें कुछ और भी प्रकट करने का। तो जो व्यास देव जी ने शास्त्रों में दिया है हमें, उसके अकॉर्डिंगली इस आसन पर बैठने के बाद बात करनी चाहिए, एज इट इज ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए इसका भी नाम व्यास आसन है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के दिन में फिर मुड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं, जिसको ब्रजवासी लोग हेड सेव करके, जो मैंने आप लोगों को बताया। और आज के दिन से कई लोग एकादशी से चतुर्मास शुरू करते हैं, या फिर कई जगह पे आज के दिन पूर्णिमा के दिन से चतुर्मास है उसकी शुरुआत होती है। आज के दिन से ही पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है। और इस महीने में जो ये एक महीना चलेगा, इसमें पहले महीने में साग मतलब पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, वर्जित है। उसके बाद दूसरे महीने में दूध है, तीसरे महीने में दही है, और चौथे महीने में उड़द की दाल है। तो जो चतुर्मास करते हैं उनका तो कई सारे हरिभक्ति विलास हैं, सनातन गोस्वामी ने बहुत डिटेल में दिया है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए ताकि जैसे ये जो जिस महीने में जो त्याग करना है, पहले महीने में साग, दूसरे महीने दूध, तीसरे में दही, चौथे में दूसरे में दही, तीसरे में दूध, चौथे में उड़द की दाल, इसको वर्जित करें। नाम जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप आ सकते हैं तो मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, भक्तों के संग में रह के कृष्ण कथा का श्रवण करें। इतना करने से भी फल की प्राप्ति होती है। तो चतुर्मास की यात्रा आज से शुरू होती है। तो हम चर्चा करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में श्रील सनातन गोस्वामी के चरित्र का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादा समय ना लें। श्रील सनातन गोस्वामी साउथ इंडियन ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। और हमारे बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो कि साउथ इंडियन ही थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण थे। कर्नाटक प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम संतोष था, संतोष दे कर्नाटक में। और श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी सब एक ही परिवार के हैं। तो ये श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी ये सब एक साथ चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य के रूप में हुए। और बाद में फिर जब जीव गोस्वामी बड़े हुए, भतीजा थे श्री सनातन गोस्वामी के, तो बड़े होने के बाद फिर वो भी वृंदावन में आए और गौरांग महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए जीवन को जिया। तो श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों इतने विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। और उस समय में मुस्लिमों का शासन चल रहा था। तो राजाओं के दरबार में एक उनका अपना प्रिंसिपल है, या उनका एक अपना नियम है कि राज्य में जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा वो हमारे दरबार में होगा। इस राज्य का जो सबसे खूबसूरत चीज होगी, ना कि इस राज्य का कहीं भी, उसको सबसे खूबसूरत चीज उसको पसंद आ गया, उसको अपने राज्य में ले आते थे धरोहर के रूप में। क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत ही विद्वान थे और रूप गोस्वामी दोनों ही, तो जो शासक था वो उनको अपने राज्य में अपॉइंट किया। बोला कि तुम मेरे राज्य में रहो और मैं तुमको उच्च पद दूंगा, बहुत बड़ी अथॉरिटी दूंगा तुमको मैं, और तुम हमारे इस राज्य को चलाने में सहयोग करो। शुरुआती दौर में तो इन दोनों भाइयों ने मना किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय में बताया जाता है कि यदि कोई ब्राह्मण या हिंदू, मतलब सनातनी धर्मी, हिंदू तो एक ऐसे नाम है, सनातन धर्मी यदि किसी मुस्लिम का संग कर लिया, उसके साथ रह लिया, या उसके स्पर्श किया हुआ कोई वस्तु ग्रहण कर लिया, तो वो उसकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। पहले मुस्लिम ऐसे ही बनाया जाता था। मुस्लिम लोग जबरदस्ती हाथ से जल लेके फेंक देते थे हिंदुओं के ऊपर में, और वो उसको हिंदू जो समाज था वो उसको बाइकआउट कर दे, तुम अब हमारे हिंदू नहीं रहे, और मजबूरी में उसको मुस्लिम बन जाना पड़ता था। तो उसने धमकी दिया उस राजा ने कि यदि तुम दोनों भाई मेरे राज्य में नहीं आए तो मैं हिंदुओं को तबाह कर दूंगा।
मंदिरों को तोड़ दूंगा, साधुओं को परेशान कर दूंगा। तो ये दोनों भाई सोचे कि चलो, यदि मुझे अपने आप को उसके हवाले करने से इस समाज में शांति रहेगी, साधु समाज या हिंदू समाज में शांति रहेगी, तो मैं ऐसा बलिदान, ऐसा त्याग करने को तैयार हूँ। फिर दोनों भाई आए और एक बने प्रधानमंत्री, एक बने वाणिज्य मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, कोषाध्यक्ष। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो थे प्रधानमंत्री उस राज्य के, और बहुत ही उनके जो तीक्ष्ण बुद्धि से के कारण इस राजा का जो राज्य है वो दिन दोगुना रात चौगुना आगे बढ़ने लगा। कई राज्य जुड़ने लगा उसके राज्य से, हर जगह जा जा के अपनी विजय प्राप्त करने लगा, इनके नेतृत्व में कार्यभार चलने लगा। लेकिन दोनों भाई के हृदय में जो एक अंदर से जो ग्लानि थी वो हमेशा वो उनको दुखी करके रखता था कि कहाँ मैं फंस गया हूँ। उनकी रुचि तो अध्यात्म में थी, कृष्ण कथा में थी, लेकिन यहाँ मुस्लिम शासक के कारण मजबूर होके वो वहाँ पे लगे हुए थे। बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी पता चला कि भगवान प्रकट हुए हैं महाप्रभु के रूप में, तो उनके दर्शन की अभिलाषा उनके हृदय में इतने तीव्र गति से बढ़ गया कि वो बेचैन हो रहे थे उस राज्य में। एक बार आके महाप्रभु से दोनों भाई काशी में मिले, आई थिंक काशी में ही सबसे पहले मिले थे। फिर वहाँ आके मिलने के बाद उन्होंने बताया महाप्रभु को कि हमारे जीवन में हमारा उद्धार कैसे होगा। महाप्रभु उनको बताया कि अभी आप लोग जाओ और जल्द ही कृष्ण की कृपा आप दोनों पे होगी। इस प्रकार से फिर रूप गोस्वामी पाद प्रॉपर वे में अपना डिजाइन मारे और वहां से निकल लिए राज्य से। बहुत सारे, एक नाव मन सोना, कैसा सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्रक से भरा हुआ ऐसा बताया जाता है। अब यानी कि मान लीजिए करीबन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 35 से 40 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके वो रिटायर हुए थे अपने जॉब से। इतने यदि पैसे आ जाए तो वेब सिटी जैसे हम कई बड़े मंदिर बना लेंगे, है ना? नहीं, आज के डेट में स्वर्ण मुद्रा 35 लाख भी यदि मिल जाए तो लेके रिटायर हुए थे। और उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी पाद में क्या किया कि 50% ब्राह्मणों को दान दे दिए, बाकी 50 में से 25% जो बचा था वो अपने रिश्तेदारों को दे दिए, और उसमें से कुछ पैसा जो बचा उसको गरीबों में दान दिया, और कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए रख लिए, और बाकी 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक व्यापारी के यहाँ रख दी, क्योंकि उस समय में बैंक नहीं होता था कि चलो जी बैंक में एफडी करा देते हैं। तो जो बिजनेसमैन बड़े बड़े होते थे उनको दिया जाता था कि आप रखिए। तो एक व्यापारी के पास 10,000 स्वर्ण मुद्रा रख दिए, और सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लिख दिए कि भैया मैं तो जा रहा हूँ महाप्रभु से मिलने, अनुपम को लेके, अपने छोटे भाई को लेके, आप भी जल्दी से आ जाइएगा, और उससे बाहर निकलने का आपको यदि पैसे की जरूरत पड़े तो इतना पैसा मैंने उसके पास रख दिया, बस आप इशारा करिएगा वो आपको पैसा दे देंगे, जागते रहिए। सोना भी बहुत अब बड़ा अपराध है ना? अलग बात है कान खुली रहती है, लेकिन आंख भी खुली रहनी चाहिए। कथा के दरमियान सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा हो रही है तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, जो थोड़े बहुत हम सुन सकें या समझ सकें। श्रील सनातन गोस्वामी इससे पहले बीमारी का बहाना करके चले आए और घर पे बैठ के भागवत श्रवण करने लगे, मेडिकल लीव लेके, मेडिकल छुट्टी लेके। राजा ने देखा यार 1 महीना हो गया अभी तक आया नहीं। उसने अपना वैद्य भेजा, राजवैद भेजा, देखे गए सनातन गोस्वामी के नाड़ी को चेक किया, बोला ये तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप तो बीमार है ही नहीं, आप बीमारी का ड्रामा किए हैं। बोले देखो साहब मुझे मन नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों में, यही करने का मन कर रहा है। वो गए राजा को बता दिए, जो मुस्लिम राजा था वो राजा बहुत आया, चेक किया, बोला अरे सनातन नहीं, सबीर खास उसका नाम, उनका नाम रखा था उसने, तुम झूठ बोल के यहां पे बैठे हुए हो, बोल रहे मैं बीमार हूं और ये कर रहे हो पंडितों के साथ बैठ के, इसके लिए तुमको सजा मिलेगी, नहीं तो चलो मेरे साथ चलो। तो बोले कि मैं तो नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। बोले तुम्हारा चलना जरूरी है, क्योंकि मैं फलाने राज्य पे
आक्रमण करने वाला हूँ, मुझे उससे विजय प्राप्त करना है और तुम्हारा नेतृत्व हमें चाहिए। तुम्हारे नेतृत्वाधान में हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी विजयी बनेंगे। सनातन गोस्वामी नहीं मान रहे थे कि नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि अब हिंदू राष्ट्र में कोई आक्रमण करे, मंदिरों को तोड़ फोड़ करे, हिंदुओं साधुओं को परेशान करे। उड़ीसा पे अटैक करना था, मैं भाग रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ एंड तक पहुँच जाऊँ इतने कम समय में। सनातन गोस्वामी तो उड़ीसा पे अटैक करने वाले थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा मेरे से यदि मैं इसमें सहयोग करूंगा। तो अपराध करना, अपराध करते हुए देखना, अपराध करते हुए सहयोग करना या अपराध को छुपा देना, सब अपराधी कहलाते हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए हमें अपराध से। वो किसी भी तरीके का अपराध हो, सेवा अपराध हो या वैष्णव अपराध हो, या नाम अपराध हो, जीव अपराध, जो भी आप बोलेंगे। जीव अपराध में ही वैष्णव अपराध भी आता है, वैष्णव अपराध में जीव अपराध आता है। तो किसी भी अपराध को करते हुए करना या करते हुए देखना, उसको छुपा देना या उसमें सपोर्ट करना, सब अपराध है। और इन सब का परिणाम बराबर मिलता है, बराबर। ये नहीं कि जो किया है उसको ज्यादा मिलेगा, मैंने देखा तो कम मिलेगा, बराबर का हकदारी है। तो सनातन गोस्वामी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोले मैं नहीं जा रहा। जैसे उन्होंने बोला तो बस उनको अरेस्ट कर लिया, उनको जेल में कैद कर दिया सनातन गोस्वामी को। तो जब सनातन गोस्वामी को कैद किया तो जो जेलर था, जब सनातन गोस्वामी जेल से बाहर थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, तो उस जेलर को बहुत हेल्प किए थे, बहुत हेल्प। सनातन गोस्वामी उसको बोले कि देखो भाई, जब मैं फॉर्म में था, एक्शन में था, तो मैंने तुमको बहुत हेल्प किया है। अब इस उपकार का बदला तुम यदि चुकाना चाहते तो मुझे इस जेल से भगा के चुका दो। जो राजा था उस समय में उड़ीसा की तरफ कुछ किया हुआ था लड़ाई करने के लिए, वो वहां पे था नहीं, कैदी जेल में। तो बोले देखिए मैं तो आपको छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये जो राजा है मेरे को 2 पार्ट में बांट देगा, टॉप फ्लोर गायब कर देगा। तो बोला देखो तुम धार्मिक व्यक्ति हो, ये एक प्रिंसिपल है, किसी को कुछ सुनाना हो तो पहले ही उसके ईगो को सेटिस्फाई करिए उसकी तारीफ करके। द मोमेंट हम उसकी तारीफ करते हैं ना तो उसका ईगो संतुष्ट होता है, वो उसका अहंकार, आहा मैं भी कुछ हूं। उसके बाद आप उसको कुछ सुनाएंगे ना, बहुत ध्यान से सुनेगा, हाँ ये व्यक्ति ने मेरी तारीफ किया। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत एक्सपर्ट थे हर चीज में, तो उन्होंने तारीफ किया उसकी। जैसे उसकी तारीफ की उसका एकदम छाती 72 इंच हो गया। फिर बोले कि देखो तुम धार्मिक व्यक्ति हो और मुझे भी धर्म के में आगे बढ़ना है, तो यदि तुम मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे तो यहाँ से मक्का चला जाऊंगा मैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म को दिखाना था ना, मुस्लिम के अनुसार ही बात करेंगे तभी तो छोड़ेगा। वो यदि बोलते कि मैं जाके वृंदावन जाऊंगा तो नहीं छोड़ता वो, है ना। नहीं, बोले मैं मक्का जाऊंगा, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा हुआ है, बोले मैं मक्का चला जाऊंगा। तो तुम यदि ये कार्य करोगे, मुझे इसमें हेल्प करोगे, तो शास्त्र ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति किसी को भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करता है तो हेल्प करने वाला व्यक्ति भी भक्ति में आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार से अपराध में नीचे जाते हैं, उसी प्रकार से भक्ति में यदि हम किसी को सहयोग करते हैं, इंस्पायर करते हैं या किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं उसको, तो उस व्यक्ति को भी उस भक्ति में एडवांसमेंट प्राप्त मिलता है, उसको भी सहयोग मिलता है उन्नति करने में। बोला देखिए तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, राजा तो मुझे बहुत मारेगा, काट देगा मुझे। बोला तुम ऐसा करना, उसको बोलना कि वो गंगा किनारे सुबह में शौच क्रिया के लिए गए थे, तो ये जो पहले जो कैद करते थे, हाथ पैर गले सब में जंजीर से बंधे होते थे, इतना वेट होता था कि व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, सपोर्ट चाहिए। तो जब उसको शौच क्रिया आदि के लिए जाना होता था तो उसी में रहता था, उसको खोलता नहीं, उसको खोला नहीं जाता था। आज तो एक हथकड़ी लगा देते हैं, चाहे पकड़ के लेके जाते हैं, चाहे जो भी है। पहले ऐसे सिस्टम था, फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, मैंने भी देखा है जब अपने जवानी में, मतलब बचपन में मूवी देखता था तो उसमें देखता था। तो उस बोलना कि वो पूरा उसके साथ, वो हथकड़ियों के साथ ही गंगा जी में कूद गया, और क्योंकि गंगा उस हथकड़ियों के साथ तो उसका वजन था, तो जमीन में दब गया होगा, रेत में बह गया आगे, हमारे हाथ नहीं आया। बोला अच्छा ये तो अच्छा आइडिया है। तो ऐसे तुम बोलोगे तो राजा तुमको कुछ नहीं बोलेगा, शौच क्रिया आदि के लिए तो जेलर को लेके जाना ही होता था। तो ये बुद्धि दिए, फिर उसने मान गया, और इसी प्रकार से उनका हथकड़ी खोल के रात तो रात, और उतना ही नहीं, उसको बोले देखो, तो उसका मन नहीं माना,
दुनिया तो माल के पीछे भागता है ना, सब यहीं रह जाता है ना। नहीं, जीवन पर्यंत लोग पैसा 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 और पैसा, इसके लिए अपनी कैरेक्टर को भी नीचा करने को तैयार रहते, कैसे भी पैसा आए, और लेके साथ में क्या जाते हैं, एक कौड़ी भी नहीं। और हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया अपने आचरण से। रूप गोस्वामी के बाद इतने पैसा लेके रिटायर हुए, 35 लाख स्वर्ण मुद्रा, अब अभी का कितना होगा पता नहीं, कितने हजार करोड़ हो जाएगा वो, हाँ, और यूं बांट दिए, हटाट सब रखो। अभी सनातन गोस्वामी की स्टोरी में हम देखेंगे, उसको बोले कि देखो मेरे पास ना 5000 स्वर्ण मुद्रा है, कुछ स्वर्ण मुद्रा है, मैं तुमको 5000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, तुम ले लो। एक घूस की प्रथा शुरू से ही चलती आ रही है। भ्रष्ट लोग तो ऐसे ही मानते हैं, ईमानदार लोग नहीं मानते हैं। तो नहीं हिला, फिर शास्त्रिक बात भी किए, फिर भी नहीं माना। सनातन गोसाई बोले मैं तुमको 7000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, क्योंकि 10,000 रखा हुआ था ना, 7000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब इस जो ईशान बोल रहा हूँ, जो ये जेलर था, उसके मन में लालच आ गया। अच्छा 7000 स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, छोड़ दिया, उसको पैसा मिल गया। वहां से सनातन गोस्वामी एक अपने असिस्टेंट के रूप में ईशान नाम के व्यक्ति को लेके भागे। जब भागे वहां से, तो रात भर दौड़ते, जंगल से, पहाड़ी रास्ते, झारखंड के रास्ते से भागते हुए आ रहे थे। जब आ रहे थे तो झारखंड के रास्ते में जब जंगल में पहुंचे तो रात हो गई, तो वहां रुके। वहां एक गेस्ट हाउस टाइप था, जो आप लोगों ने सुना होगा कहानी, स्टोरी। उसमें कैसे उसके पास एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी देख लेता था कि इस रास्ते से ये व्यक्ति आने वाला है, इसके पास इतना माल है, तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करके उसको रख लेते थे वो होटल के मालिक, और रात में उसका लूट के सारा सामान और उसको खल्लास करके फेंक देता था जंगल में। तो उसको पता चल गया कि ये जो अभी आ रहा है 2 व्यक्ति, इसके पास स्वर्ण मुद्रा है। बहुत आओ भगत करने लगा सनातन गोस्वामी का, क्योंकि ये मुस्लिम शासक के उसमें एक मंत्री थे और पटु थे अपने आप में, सब कुछ समझने में। इनको डाउट हो गया, ये इतना खातिरदारी क्यों कर रहे हैं। अपने पार्टनर को बोले, ईशान को बोले, तुम्हारे पास कुछ स्वर्ण मुद्रा है क्या? जी। कितने हैं? तो 7 हैं। लाओ। उसे स्वर्ण मुद्रा ले लिए, ले जाके उस होटल के मालिक को दे दिए कि ये लीजिए, मेरे पास ये कुछ स्वर्ण मुद्रा है, आप रख लीजिए, और बदले में मुझे ये जो जंगल है, क्योंकि रास्ता मुझे पता नहीं, इस जंगल को पार करा दीजिए, मुझे जाना है। तो होटल का मालिक बोला कि देखो, उनकी ईमानदारी को देखते हुए होटल का मालिक जो है वो भी ओपन हो गया, ऑनेस्ट हो गया। ये संघ का असर, हमारी चेतना जैसी रहेगी, हमारे सामने वाले की चेतना वैसी हो जाएगी। ये साइंस है, ये सटल वेव, हिडन वेव है। ये जिस चेतना में हम सामने वाले से बात करेंगे, वो वेव जाके उस सामने वाले के कॉन्शियसनेस को टच कर देता है, उसका कॉन्शियसनेस वैसा हो जाएगा। इसलिए इसकी बहुत जरूरी है अच्छा रखने का, गुडनेस में हमेशा। तो होटल का मालिक बोला कि देखो साहब, हम आपकी खातिरदारी तो कर रहे थे, लेकिन हमारा प्लान ये था कि रात में हम आपका सारा पैसा लूट लेते और आपको मार देते, लेकिन आपकी ईमानदारी को देखते हुए मुझे अब ऐसे पाप कार्य करने से तो भगवान ने बचा ले, अब और नहीं करना चाहता। ये पैसा आप रखो और आपको मैं पार करा दूंगा, जंगल पार करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखो जी, मुझे तो आप ये पैसा रख लो, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पार जरूर करा दो। बोले बाय द वे, मेरा ज्योतिषी जो है वो बोला था कि 8 स्वर्ण मुद्रा है, आपने मुझे 7 दिया है। तो बोले 8? ईशान, एक और है, एक और है। देखे, फिर सनातन गोस्वामी को पार किए, और फिर इस प्रकार से सनातन गोस्वामी आए कहाँ पे? बनारस पहुंच गए। उससे पहले हाजीपुर में रुके। कौन से हाजीपुर? आप ही का प्रीचिंग एरिया, पटना। उस हाजीपुर में वहां रुके। वहां पे श्रीकांत जो उनके ये थे, बहनोई थे, जीजा जी, तो वो भी किसी राजा के अंडर में थे। उनके पास बहुत पैसा होता था, 3 लाख स्वर्ण मुद्रा रखते थे। किस लिए? कि ताकि घोड़ा खरीदते थे और राजा को राज्य में भेजते थे वो।
तो बाहर किसी पार्क में रुक गए हाजीपुर में। वो श्रीकांत ने देख लिया, देखा अरे ये तो सनातन है, मतलब संतोष है, घर का नाम संतोष था। फिर आए, उनसे मिले। आगे जाके सनातन गोस्वामी ने ईशान को भी छोड़ दिए थे कि तुम इसमें फंसे हुए हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम मौत को लेकर अपने साथ चल रहे हो। सनातन गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं इस लीला के माध्यम से, ये जो ऐश्वर्य है इस संसार का, ये हमारे लिए मौत है। अब देखिए, जो जितने बड़े आदमी हैं उतने सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है। घर से बाहर चलते हैं, बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता, कोई भी कभी भी ठोक देगा। घर में 1000 कुत्ते, 2-4 कुत्ते पालेंगे ऐसे शेर की तरह, जो कोई घुस ना पाए, फिर भी चोर तो चोरी करके चला ही जाता है। ये पैसा वैसा, ये सब मौत का जड़ है। ये आध्यात्मिक मौत भी है इसमें। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पाते, 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं। कब वो 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ होगा, 2 से 3, 5, 8, वो बढ़ाने में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक रुचि रहती नहीं है। तो यदि आध्यात्मिक उन्नति करना है तो ये भौतिक चीजों को त्यागना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है साहब। स्पेशली धन। यदि आपके पास धन है तो कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, तो आप सेफ हैं। यदि आपने कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो वो धन आपको मार देगा, आपको मार देगा। या तो इस शरीर से मारेगा, या फिर आपकी चेतना से मारेगा। और आध्यात्मिक उन्नति तो मरा ही पड़ा है, वो तो मरे पड़े। जरूरी नहीं कि जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, वो भक्त होगा। माया का ये प्रपंच है, ये उसका ये तरीका है कैसे जीवात्मा को फंसाया जाए। इसलिए धन के पीछे तो कभी नहीं भागना चाहिए। किस्मत में जो लिखा है, आप अपना बेस्ट करते जब आपके पास आएगा वो ऐश्वर्य, निश्चित है आना ही। आपकी किस्मत में लिखा है पूर्व जन्म के कर्म के कारण, तो इस जन्म में आपके पास आएगा, बस आप अपना करते जाओ। लेकिन यदि नहीं लिखा है, आप सर फोड़ लो, जान दे दो, नहीं मिलेगा। अब मिल भी जाएगा तो लेके कुछ नहीं जाएंगे साथ में। सही बोल रहा हूं डॉक्टर प्रभु? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो है लगा दो, जिसका है उसकी सेवा में लगा दो। अरे उसका कैसे, मैंने कमाया, मैं तो मेहनत करके लाया। अरे भाई, कौन करा रहा है वो तो देखो। फिलोसफिकली कृष्ण करा रहे हैं। यदि मैं प्रकृति का अधीन हूं, पढ़े लिखे लोग बोलते प्रकृति करा रही है मेरे से, करेक्ट। भगवान ही बोलते प्रकृति करा रही है। प्रकृति गुणे क्रिया माने नहीं, गुणे कर्मानी सब संकार तो करता है, प्रकृति करा रही है। तो प्रकृति को कौन चला रही है? वो देखो, मयाध्यक्ष है ना प्रकृति, सुयते सचराचरम। तो कृष्णा ही अल्टीमेटली करा रहे हैं। तो जो उसके माध्यम से हमें मिल रहा है तो उसकी सेवा में लगा देनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण। सनातन गोस्वामी यही देखा सिखा रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों को मत रखो अपने पास। जैसे सब कुछ स्वर्ण मुद्रा ये सब दे दिए, अपना फटा चिटा सब कपड़ा जो पहने थे गुदरी वुदरी डाल के रिलैक्स होके फ्री मूड में चलने लगे। ईशान को भी घर भेज के, ये भी एक मेरे को परेशानी का घर है, उसको भी त्याग यार, तू भी जा, घर जा, वापस जा, तुम उसी में लिपटा रहे। नम फ्री होके, कोई टेंशन नहीं। अब कौन मारेगा भाई? कुछ होगा तब तो कोई डिस्टर्ब करेगा। अब खुला आराम से भगवान का भजन करो। जीवन का मजा इसी में, आनंद। तो वहां पे जो उनके बहनोई थे श्रीकांत, उन्होंने फिर उनको घर बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि आप 2 दिन यहाँ रुके। बोले नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मेरा टारगेट कुछ और है, मेरा गोल फिक्स हो गया है। मैं अभी जाके महाप्रभु से मिलूंगा। जागते रहो, महाप्रभु से मिलूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे करूंगा जो करना है, मुझे यहाँ मैं नहीं रुक सकता। तो फिर श्रीकांत ने उनको एक कंबल वगैरह गिफ्ट किया। बोला कि आप यहाँ रुक जाते, थोड़ा स्मार्ट आदमी की तरह, जेंटलमैन की तरह, क्या फटे चिटे पहन के जा रहे हो, अब गंदे तो देख रहे हो, थोड़ा अच्छे सब। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने तरफ से, क्योंकि बहनोई और साला होंगे ना, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कुछ गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले आदमी थे। तो एक कीमती कंबल उनको भेंट किया और कंबल डाल के सनातन गोस्वामी पहुंचे। कहाँ? बनारस। बनारस में पहुंचे कहाँ पे? चंद्रशेखर आचार्य के घर पे। वहां पे महाप्रभु रुके हुए थे। देखा जाए तो सनातन गोस्वामी के लिए ही रुके हुए थे। सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे और जैसे वहां पहुंचे तो महाप्रभु का आभास और महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोले, बाहर जाके देखिए कोई वैष्णव है, उनको बुला के लेके आइए। तो बाहर आए, देखे कोई वैष्णव नहीं है। कोई वैष्णव की तरफ भाई थोड़ा ठीक तिलक होता, धोती कुर्ता, थोड़ा ठीक ठाक वेशभूषा, नाम जप करते हुए, नहीं कोई है ही नहीं। हो गए, बोले महाप्रभु बाहर कोई तो है नहीं। क्या खुल गया अपने आप? तो महाप्रभु बोले
कोई बाहर है बैठा हुआ था, हाँ एक मुस्लिम फकीर बैठा हुआ है, बोले वही वैष्णव है। महाप्रभु खुद आए लेने के लिए, चंद्रशेखर आचार्य भी आए। जैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखते ही गले लगा लिए, गले लगा के एक रो रहे हैं एक दूसरे, सब एक दूसरे कंधे पे सिर रख के, महाप्रभु और सनातन गोस्वामी कंधे पे सर रख के रो रहे हैं। इसको देख के चंद्रशेखर आचार्य आश्चर्य, ये क्या हो रहा है। फिर महाप्रभु वहां पे परिचय दिए कि ये कौन है। सनातन गोस्वामी वहां पे उनकी, मैं तो समय नहीं है, मतलब लेके आया था किताब का, आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन सीधा बीच में से लीला सुनाने से कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए शुरू से सुनाना पड़ता। टाइम खत्म हो गया 9 बज गया। सनातन गोस्वामी वहां बता रहे हैं महाप्रभु को कि आप मुझे स्पर्श मत करिए, मैं अछूत हूं। इसी प्रकार से जब वल्लभ भट्ट मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, तो उस समय रूप गोस्वामी और जो अनुपम गोस्वामी वो भी दोनों थे। जब उनको परिचय कराए कि ये रूप और ये अनुपम है, उनका परिचय कराए, तो तुरंत उन दोनों भाइयों ने वल्लभ भट्ट को प्रणाम किए। तो वल्लभ भट्ट आगे बढ़े उनको आलिंगन करने के लिए, तो रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों पीछे हटने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अछूत हूं। कैसे अछूत हैं? तो मैंने एक अछूत जाति का संग किया है, मुस्लिम जाति का। मुस्लिम जाति अछूत है। नेट पे सब सुन रहे होंगे, कुछ मुस्लिम फतवा जारी ना कर दे मेरे खिलाफ, कोई बात नहीं, शास्त्र तो यही कहता है। तो मैं अछूत हूं बहुत, लेकिन गले नहीं मिलने दिए वल्लभ भट्ट को। बाद में वल्लभ भट्ट वहां पे बता रहे हैं कि यदि कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है निरंतर, तो वो कैसे अछूत हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 3:33 7वां श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि एक स्वपच कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी, अभी भी उसका चर्चा आएगा, मैं थोड़ा 1-2-10 मिनट आप लोगों का एक्स्ट्रा लेके पढ़ूंगा इसमें से, जो टीचिंग्स महाप्रभु दे रहे हैं। ये जाति बुद्धि जो भक्तों के बीच में भी होता है, ये जाति बुद्धि कितना जहर है, 2-3 प्यार का मैं अनुवाद पढ़ूंगा आप लोगों के साथ, एज इट इज आप लोगों को सुनाने का प्रयास करूंगा। तो वहां महाप्रभु उनको वल्लभ भट्ट को बता रहे हैं कि तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यो कलयुगी जो ब्राह्मण है, जो बोलते हैं कि अरे ये जाति है, इसका हाथ का ये मत करो, वो मत करो, नाम ले रहा ढोंग है, नाम ले रहा फिर भी दूर रहो, तुम इस सिद्धांत को काट रहे हो। तुम सच में सही ब्राह्मण हो, सही भक्त हो। यदि कोई जीवात्मा भगवान का नाम ले रहा है तो वो अछूत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से महाप्रभु फिर सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं कि आप मुझे स्पर्श मत करिए। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें मैं स्पर्श कर रहा हूं अपनी शुद्धिकरण करने के लिए। महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। और बता दें कि महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी के शरीर को ऐसे साफ कर रहे थे, तब सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप मेरे शरीर को स्पर्श मत करिए। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करते हो। देखिए, ये सिर्फ सनातन गोस्वामी की बात नहीं हो रही है, शिक्षाएं हैं वैष्णव के बारे में। वैष्णव क्या होते हैं वो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ जो लीला कर रहे हैं उसके माध्यम से हमें बता रहे हैं। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। किसको? सनातन गोस्वामी को। महाप्रभु ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृति वैदिक साहित्य का कितना ही पंडित क्यों ना हो, जब तक वह व्यक्ति भक्ति में शुद्ध ना हो, वह तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निसंदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य हैं। वैष्णव भगवान की तरफ पूज्य हैं। और वैष्णव का स्वभाव क्या है? 24 घंटा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आगे महाप्रभु बता रहे हैं, भले ही ब्रह्मांड
भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों न हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता है तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है। तो चंडाल से भी नीचा हो गया। जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यद्यपि स्वपच्छ या चंडाल भक्त होता है, यद्यपि स्वपच्छ या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर। चैतन्य महाप्रभु कहते गए, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। सनातन गोस्वामी गुणगान कौन कर रहे हैं? महाप्रभु खुद कर रहे हैं। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। आंख मुझे मिला है, ये पूर्ण तब होता है जब हम वैष्णवों का, लेकिन वैष्णव के दर्शन करने से, वैष्णव का दर्शन करने से होगा। मतलब वो चेतना होनी चाहिए कि सामने वाले वैष्णव हैं जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जिनके प्रेजेंस मात्र से, पदार्पण से वो जगत धाम तीर्थ बन जाता है, जो अपने प्रकट से ब्रह्मांड को शुद्ध करते हैं, अपनी वाणी से कर्ण को शुद्ध करते हैं। ऐसे वैष्णव ये कॉन्शियसनेस रखना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है, आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतित आत्माओं को धारक हैं। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौड़ब से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं और उनकी लीला अत्यंत गंभीर है। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। अब सनातन गोस्वामी देखिए, महाप्रभु को प्रूफ कर रहे हैं कि आप ही हैं, वो आप ही भगवान है। जैसे रूप गोस्वामी पाद ने देखते ही बोल देता, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। महाप्रभु वहां बोलते, कैसे मैं कृष्ण कैसे हो गया मैं? तो वो बता रहे हैं, इसका अब चेंज हो जाएगा टॉपिक। तो सनातन गोस्वामी वैसे ही बता रहे हैं कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका हूं, क्योंकि आपने बोला था कि तुम पे कृष्ण की कृपा होगी। आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ हूं, कृष्ण को मैं नहीं जानता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से पूछा, तुम, फिर महाप्रभु वहां पे पूछते हैं सनातन गोस्वामी से कि तुम किस प्रकार से यहां से छूटे हो, बंदी गृह से छूटे तुम। सनातन गोस्वामी ने पूरा डिटेल बताया, ये हवा उधर जा रही है, इधर तो आ ही नहीं रही है। तो ऐसे हो गया, टाइम हो गया, आप लोग परेशान मत होइए। मैं भी इतना देर इंतजार कर रहा था, किसी की नज़रें जाएंगी तो देख सकते हैं कि हवा किधर जा रही है। ये सेंसिटिविटी सेवा में जरूरी है। कोई भी सेवा कर रहे हैं तो एक ये सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर वो सेवा में क्वालिटी नहीं आता। एनीवे, फिर सनातन गोस्वामी, बैठ जाइए। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के जो पार्षद हैं, सब पार्षदों को अलग अलग सेवा देते हैं, दिए सबको अलग अलग। किसी को बोले शास्त्रों की रचना करो, किसी को बोले कि जो छुपा हुआ जो भगवान की लीला स्थली उसको प्राकट्य करो, तो किसी को बोले कि उस स्थली का जो जीर्णोद्धार करो। सबको अलग अलग दिए। किसी को बोले कि फलानी जगह जाके प्रचार करो। उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी को भी बोले कि आप लीला स्थली का प्रकट करो, जो छुपा हुआ है, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि भगवान ने यहाँ पे ये लीला किए थे, ये करो। और जो भक्ति का जो मूल रहस्य है, जिसको हम लोग आज के दिन में पढ़ते हरि भक्ति विलास, इसमें जो भक्ति डीटी वर्शिप से लेके वैष्णव एटिकेट से लेके सब कुछ इतना डिटेल में उन्होंने दिया है। जो भक्ति का मूल है, जो फाउंडेशन है, उसके बारे में बोले कि आप इसका विस्तार से
विस्तार से वर्णन करो ताकि जीवात्मा इसको समझ सके, एक साधक इसको समझ के अपने जीवन उद्धार अपना सफलता प्राप्त कर सके। फिर सनातन गोस्वामी को वहाँ से वृंदावन भेजते हैं, वृंदावन में आते हैं, फिर मदन मोहन की सेवा होती है और फिर पूरी की भी लीलाएं, बहुत सारी हजारों लीलाएं हैं। लेकिन समय हो गया 9:10 में 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है, तो आज तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और एक दिन की बात है जब सनातन गोस्वामी करीब 90 साल की अवस्था तक सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। 90 साल की अवस्था में भी। हम तो एक बार लगा के आते हैं तो 1 महीने तक, हाँ नहीं, पंचर रहते हैं, लगाते भी नहीं है। साल में 1 बार लगा लिया, कोई लगा लिया तो अभी 1 बार लगा लिया तो 1 महीने तक रहता है थकान, फिर अगले महीने का प्लान करते हैं। और सनातन गोस्वामी रोज 90 साल की अवस्था में भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। और इसी प्रकार परिक्रमा लगाते लगाते एक दिन उनको साक्षात गिरिराज जी सामने में दर्शन दिए, प्रकट होके मदन मोहन जी आए गोपाल के बालक के रूप में और बोले, बाबा अब आप बूढ़े हो गए, अब आपकी इसकी आवश्यकता नहीं है, आप परिक्रमा मत लगाओ। बोले नहीं, जब तक शरीर में जान है मैं परिक्रमा लगाऊंगा। सनातन गोस्वामी ये बात बोले नहीं बाबा, अब आप तो इतने रोज आप लगाते हैं, इतने सालों से आप लगा रहे हैं, अब आप मत लगाए। नहीं मैं लगाऊंगा। जब उनकी हट देखा तो जो बालक था वो एक गिरिराज शिला लेके आए जिसमें भगवान के चरण चिन्ह, गाय के खुर के निशान और भगवान के लकुटी के निशान। आप श्री राधा दामोदर मंदिर जाएंगे तो आप सामने में, आपने से कितने लोग राधा दामोदर मंदिर गए हैं वृंदावन में? ऑलमोस्ट सभी गए। कितने लोगों ने उस शिला की दर्शन किया है? सारे निशान दर्शन किए हैं, बहुत बढ़िया। तो साक्षात आपको गिरिराज जी के दर्शन हो गए। सनातन गोस्वामी को वो शिला दिए, बोले कि बाबा आप ये शिला रखिए और इस शिला की रोज आप 4 परिक्रमा लगाएंगे, आपको गिरिराज की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर सनातन गोस्वामी उसको लेके रखे अपने पास और उसी की परिक्रमा, क्योंकि शरीर जीर्ण हो गया था, कमजोर हो गया था। इन लोगों के वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे तो एक फिर अपने आप में 1 घंटा ले लेगा कम से कम। तो कुछ नहीं, सूखी चपाती को पानी में गीला करके खाते थे, है ना, कुछ नमक भी नहीं होता था, उसी को भोग लगाते थे, खाते थे। पहनते क्या थे? कोपीन, बस एक कमंडल, कुछ नहीं होता था। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, कोई धन संग्रह इकट्ठा नहीं। साधक को तो ये सब इकट्ठा, उसको मैनेज करने में ही टाइम निकल जाता है। जितना ताम झाम इकट्ठा करेंगे, जितना सामान इकट्ठा करेंगे, उसको मैनेज करने में टाइम निकल जाए, वो साधना क्या करेगा? जितना इन सबसे जंजाल से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मिनिमाइज योर नीड्स, इनफैक्ट बॉडली नीड्स को भी मिनिमाइज कर देना चाहिए। बॉडली नीड्स को भी, भूख को भी, जो अर्जेज है, जो वेग है शरीर का, मनसा वेगम, वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, उद्रोपस बेगम, जीवा बेगम, सारे वेग को कंट्रोल कर देना चाहिए। जितनी जरूरत है उससे भी कम, तभी कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज इसकी पूर्ति करने में जीवन चला जाता है, भक्ति तो दूर। एक साधक के लिए भी ये जहर है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी एक दिन बैठे हुए थे, बैठे बैठे लीला में प्रवेश कर गए, शरीर से बाहर निकल गए, भगवान के धाम में पहुंच गए। तो आज ही का वो दिन है और इसी को दुख को प्रकट करने के लिए ब्रजवासी को जब सुने तो बहुत कष्ट हुआ। बहुत छोटी छोटी और मधुर लीलाएं हैं। इस समय में वेग आ रहा है बोलने के लिए, मैं समय का वेग मुझे रोक दिया है कि बस करो। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री सनातन गोसाई पाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पे कृपा करें, ताकि हमारे हृदय में भी वैष्णवों के चरणों के प्रति रति प्रकट हो, कृष्ण नाम गुण रूप लीला के प्रति आसक्ति आकर्षण प्रकट हो, भौतिक आसक्ति आकर्षण ये सब खत्म हो, क्षीण हो और कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त हो। हम पे कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव दिवस महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।